নমস্কাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ আমাৰ ইউটিউব চেনেল শ্ৰীমন্ত মোটিভেটৰলৈ আমি যাবলৈ ওলাইছোঁ শিৱসাগৰৰ ইতিহাস প্ৰসিদ্ধ শিৱদৌল প্ৰাংগণলৈ আজি ভাৰত চৰকাৰৰ আয়ুষ মন্ত্ৰালয়ে আন্তৰ্জাতিক যোগা দিৱসৰ কাৰণে আয়োজন কৰা এক বিশেষ অনুষ্ঠানত আমি আপোনালোকক দেখুৱাম এক বিৰল দৃশ্য য'ত হাজাৰ হাজাৰ ব্যক্তিয়ে যোগাত অংশগ্ৰহণ কৰিব আৰু তালৈ আহিব অসম চৰকাৰৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয় শ্ৰীযুত হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা মহোদয় আৰু তালৈ আহিব কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী শ্ৰদ্ধাৰ সৰ্বানন্দ সোণোৱাল মহোদয় প্ৰমুখ্যে বিভিন্নজন কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী আৰু বিভিন্নজন চৰকাৰী বিষয়ববীয়া আজি আমাৰ বিদ্যালয়সমূহৰ অৰ্থাৎ শিৱসাগৰ জিলাৰ বিদ্যালয়সমূহৰ মাননীয় পৰিদৰ্শক মহোদয় কমলজ্যোতি গগৈ ছাৰৰ নিৰ্দেশক্ৰমে আমি যাবলৈ ওলাইছোঁ তালৈ আৰু তাৰ পৰা আজি আপোনালোকক আমি দেখুৱাম এই বিৰল দৃশ্য আৰু আপোনালোকে চাই থাকিব আৰম্ভণিতে আমি নিশ্চয় আপোনালোকক দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিম মাননীয় সৰ্বানন্দ সোণোৱাল মহোদয়ৰ বক্তৃতা আৰু দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিম মাননীয় হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা মহোদয়ৰ বক্তৃতা হয়তো আৰম্ভণিতে আমি তেখেতলোকক একেবাৰে কাষৰ পৰা দেখুৱাব নোৱাৰোঁ কিন্তু বিশ্বাস ৰাখক কিন্তু তেখেতলোকে যি যোগাৰ অনুশীলন কৰিব সেই যোগাৰ অনুশীলন একেবাৰে সন্মুখৰ পৰা আপোনালোকক দেখুৱাবলৈ আমি চেষ্টা কৰিম অনুষ্ঠানৰ শেষত আমাৰ শ্ৰদ্ধাৰ পৰিদৰ্শক মহোদয়ে বিদ্যালয়সমূহৰ পৰিদৰ্শক মহোদয়ে কি বক্তব্য আগবঢ়ায় আমাৰ শিক্ষকসকলক উদ্দেশ্যি ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক উদ্দেশ্যি আৰু আজি অনুষ্ঠানক উদ্দেশ্যি সেয়া চাবলৈ নাপাহৰিব প্লিজ উইদাউট স্কিপিং ডু ৱাচ আৱাৰ এয়া মই আপোনালোকক দেখুৱাইছোঁ ঐতিহাসিক শিৱদৌলৰ দৃশ্য এয়া চাওক এই শিৱদৌলৰ প্ৰাংগণত কেনেধৰণে আজি যোগাৰ কাৰণে ইয়াত সমবেত হোৱা হৈছে ইয়াত মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয় অসমৰ সৰ্বানন্দ সোণোৱাল মহোদয় কেশৱ মহন্ত মহোদয়কে প্ৰমুখ্য কৰি বহুকেইজন মন্ত্ৰী আৰু চৰকাৰী বিষয়া ইয়াতে উপস্থিত আছে মই আপোনালোকক দেখুৱাইছোঁ ক্ষেত্ৰত তেখেতে ঘোষণা কৰিছিল গতিকে আজি আমি এই শিৱসাগৰখনক বিশ্বৰ মানৱ সমাজৰ সন্মুখত এই যোগ দিৱসৰ যোগেদি আমি সুন্দৰভাৱে দাঙি ধৰিব লাগিব ইয়াৰ গুৰুত্ব ইয়াৰ মহত্ব আৰু ইয়াৰ সৌন্দৰ্য গতিকে মই ভাবোঁ যে এই অনুষ্ঠানত আপোনালোকে অংশগ্ৰহণ কৰি এই মহৎ দায়িত্ব আৰু কৰ্তব্য আপোনালোকে পালন কৰাৰ ক্ষেত্ৰত আপোনালোকে নিশ্চিতভাৱে নিশ্চয় আপোনালোকে আত্মনিয়োগ কৰাৰ বাবে এই অনুষ্ঠানত অংশগ্ৰহণ কৰিছোঁ মই সকলো আন্তৰিকতাৰে স্বাগতম জনাইছোঁ আৰু বিশেষকৈ ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াক মই বিশেষভাৱে ধন্যবাদ জনাইছোঁ তেখেতে ব্যস্ততাৰ মাজতো এই অনুষ্ঠানত উপস্থিত থকাৰ কথা কোৱাই নহয় তেখেতে বিভাগক নিৰ্দেশ দিলে শিৱসাগৰ জিলা এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যন আৰু স্বাস্থ্য বিভাগ আয়ুষ মন্ত্ৰালয়ক নিৰ্দেশ দিছে যে সকলোৱে এই ক্ষেত্ৰত নিষ্ঠাৰে গোটেই কামখিনি সম্পূৰ্ণ কৰিব লাগে সফল কৰিব লাগে আৰু এই শিৱসাগৰ জিলাৰ যিদৰে ইয়াক কোনো ৰোগে আক্ৰমণ কৰিব নোৱাৰে গতিকে আমি যদি সুস্বাস্থ্য অধিকাৰী হৈ থাকিব লগা হয় বিশ্বৰ মানৱ সমাজ যদি সুস্বাস্থ্য অধিকাৰী হৈ থাকিব লগা হয় সেইবাবে যোগাভ্যাস কৰাটো একান্তই প্ৰয়োজন আৰু সেই যুক্তিৰে মাননীয় প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে বিশ্বৰ মানৱ সমাজৰ সুস্বাস্থ্য কামনা কৰি এই প্ৰস্তাৱ আগবঢ়াইছিল আৰু বিশ্বৰ মানৱ সমাজে এই কথাটো আজি আন্তৰিকতাৰে নিষ্ঠাৰে আগুৱাই লৈছে ভাৰতীয় সভ্যতা আৰু সংস্কৃতি এক অবিচ্ছেদ্য অংগ হৈছে যোগ প্ৰাচীন ভাৰতীয় ঋষি মুনিসকলে হাজাৰ বছৰৰ সাধনাৰে গঢ়ি তোলা যোগ পৰম্পৰা আজি বিশ্ব মানৱৰ উমৈহতীয়া সম্পদত পৰিণত হৈছে জীৱনশৈলী সুস্থ আৰু সুন্দৰ ৰূপত গঢ়ি তোলাৰ লগতে মানসিক প্ৰশান্তিৰ বাবে যোগাভ্যাসৰ যি পৰম্পৰা সেই পৰম্পৰা আজি বিশ্ব সম্প্ৰদায়ৰ বাবে আশীৰ্বাদ স্বৰূপ হৈ পৰিছে যোগৰ জৰিয়তে শৰীৰ আৰু মনৰ চিন্তা আৰু মনৰ বাধা আৰু প্ৰাপ্তি মানৱ আৰু প্ৰকৃতিৰ মিলন সম্ভৱ হৈ উঠে যোগ কেৱল ব্যায়াম আৰু অনুশীলনৰ সমষ্টি নহয় যোগ হৈছে সক্ষমতা সুস্বাস্থ্য আৰু মানসিক প্ৰশান্তি লাভৰ এক সুগম পথ সেইবাবে ৫,০০০ বছৰৰ ভাৰতৰ সনাতন সভ্যতা সংস্কৃতি এক উত্তম ফচল হিচাপে আজি সমগ্ৰ বিশ্ববাসীয়ে যোগৰ মহত্ব আৰু গুৰুত্ব উপলব্ধ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে প্ৰধানমন্ত্ৰী দায়িত্ব গ্ৰহণ কৰিয়ে মাননীয় প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াই যোগক ভাৰতৰ এই অত্যন্ত মূল্যৱান সম্পদক বিশ্ববাসীৰ সন্মুখত তুলি ধৰাৰ বাবে
দৃঢ়তাৰে পদক্ষেপ লয়। 2014 চনৰ 27 ছেপ্টেম্বৰত ভাৰতৰ মাননীয় প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াই ৰাষ্ট্ৰসংঘৰ সাধাৰণ পৰিষদত প্ৰদান কৰা ভাষণত ভাৰতীয় সভ্যতাৰ এই উত্তম পন্থা গ্ৰহণ কৰি বিশ্বৰ কোটি কোটি জনসাধাৰণক উপকৃত কৰাৰ বাবে আহ্বান জনাইছে। প্ৰধানমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াৰ আহ্বানৰ প্ৰতি সঁহাৰি জনাই মাত্ৰ 90 দিনৰ ভিতৰতে অৰ্থাৎ 2014 বৰ্ষৰ 11 ডিচেম্বৰত ৰাষ্ট্ৰসংঘৰ সাধাৰণ পৰিষদে 21 জুনত যোগ দিৱস হিচাপে ঘোষণা কৰি এই প্ৰাচীন ভাৰতীয় পৰম্পৰাক মান্যতা প্ৰদান কৰাটো আমাৰ বাবে অত্যন্ত গৌৰৱৰ বিষয়। শৰীৰ আৰু মন ব্যক্তি সত্তাৰ এই দুই অংগৰ সুস্থতাৰ ওপৰতে স্বাস্থ্যৰ স্থিতি নিৰ্ভৰশীল। যেতিয়া মানুহৰ মন আৰু শৰীৰ দুইটাৰ ওপৰতে সামঞ্জস্য থাকে, যাক আমি বেলেঞ্চ বুলি কওঁ, তেতিয়াই সেই মানুহজনৰ জীৱনৰ সৰ্বাংগীন বিকাশৰ আৰম্ভণি কৰে। মানুহৰ মন চিন্তাশীল হয় আৰু শৰীৰ সুগম বা সুষম বা সুস্বাস্থ্যৱান হ'ল। এই দুইটা সমন্বয়ে এজন মানুহক পূৰ্ণাংগ মানুহ হিচাপে গঢ়ি তোলে। ভাৰতীয় সনাতন সভ্যতাৰ অন্যতম গৱেষক পণ্ডিত তথা বিশিষ্ট অসমীয়া সাহিত্যিক ৰাধানাথ ফুকন ডাঙৰীয়াই প্ৰাণায়ামৰ মহত্ব সম্পৰ্কে কৈছিল, ভাৰতীয় দৰ্শনে দাৰ্শনিক যুক্তিৰে প্ৰমাণ কৰিছে যে প্ৰাণ শক্তি চিত শক্তিৰ সম্পূৰ্ণ বিপৰীত। প্ৰাণ শক্তি আৰু সাধাৰণ শক্তি একে শক্তি। ইহঁতৰ প্ৰভেদ এই যে প্ৰাণ শক্তি অতি সূক্ষ্ম অপঞ্চীকৃত শক্তি বা ভাৱ, আৰু ইটো শক্তি স্থূল শক্তি, যাক আমি যন্ত্ৰৰে জুখিব পাৰোঁ। প্ৰাণ শক্তি চিন্তা শক্তিৰ দৰে বুদ্ধিষ্ট সংস্কাৰত ভাৱস্বৰূপে থাকে আৰু ইয়াৰ কাৰ্য 5 বিধ: প্ৰাণ, অপ্ৰাণ, সমান, উদান, ব্যান আদি, অৰ্থাৎ নিশ্বাস, প্ৰশ্বাস, মলমূত্ৰ ত্যাগ আদি। এটা কথা আমাৰ ঋষি মুনিসকলে যুক্তি সহকাৰে প্ৰমাণ কৰি থৈ গৈছে যে যি প্ৰাণীয়ে উশাহ নোলোৱাকৈ বহু পৰ থাকিব পাৰে, সেই প্ৰাণীয়ে হৈছে দীৰ্ঘজীৱী। প্ৰাণায়াম কৰি শ্বাস প্ৰশ্বাস নিয়ন্ত্ৰিত কৰিব জানিলে মানুহ অকল আয়ুসেই নেবাঢ়ে, শৰীৰ সবল আৰু সুস্থ হয়, বেমাৰ নোহোৱা হয়। ঋষিমুনিসকলৰ কেইবা হাজাৰ বছৰ আগতে বিবিধ পৰীক্ষা নিৰীক্ষাৰ জৰিয়তে শ্বাস প্ৰশ্বাস আৰু অংগ সঞ্চালনৰ জৰিয়তে শৰীৰৰ পেশীসমূহ সবল কৰি সুস্বাস্থ্য আৰু দীৰ্ঘায়ু লাভৰ পৰামৰ্শ দি থৈ গৈছে। পঞ্চদশ শতিকাত যোগাভ্যাসৰ গুৰুত্ব আৰু মহত্ব সম্পৰ্কত দৰ্শনৰ ব্যাখ্যা দি থৈ গৈছে মহাপুৰুষ শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱে। কৈশোৰকালত মহাপুৰুষ শংকৰদেৱে যি সৌৰ্য বীৰ্য শক্তি তথা মেধাৰ পৰিচয় দিছিল, সেইখিনি এজন যোগীৰ বাবেহে সম্ভৱ। ভৰ বাৰিষা ব্ৰহ্মপুত্ৰ নদ সাঁতুৰি পাৰ হোৱা, সাৰ গৰুৰ সৈতে যুঁজি আদি কাম শংকৰদেৱে এগৰাকী প্ৰকৃত যোগী হিচাপেহে সম্ভৱ কৰিব পাৰিছে। অংকীয়া নাট, ভাওনা, সত্ৰীয়া নৃত্যৰ মুদ্ৰাসমূহত আমি দেখা পাওঁ বিভিন্ন যোগাসনৰ বিভিন্ন ভংগীমা। আনকি থিয়না, জোনানাম ইত্যাদিতো যোগ আৰু প্ৰাণায়ামৰ সাদৃশ্য বিচাৰি পোৱা যায়। মহাপুৰুষগৰাকীয়ে দি যোৱা আদৰ্শৰ জৰিয়তে আমাৰ যুৱ প্ৰজন্ম সুস্বাস্থ্যৰ অধিকাৰী হৈ কঠোৰ শ্ৰম কৰাৰ মানসিকতা আহৰণ কৰিবই লাগিব। আধুনিক সভ্যতাৰ অভিশাপ স্বৰূপে মানুহ বিভিন্ন মানসিক চাপত থাকে। মানসিক চাপ প্ৰতিৰোধ কৰিবলৈ উত্তম পন্থা হৈছে যোগ। যোগ আৰু সুখৰ মাজতো আছে এক অপূৰ্ব সম্বন্ধ, কাৰণ স্বাস্থ্যৱান দেহ এটাহে শক্তিশালী মনে বাহ লয়। মানুহ সুখী হ'ব লাগিলে যোগে তাৰ বিধান দিয়ে। যোগ হৈছে এক বিজ্ঞান, সেইবাবে ইয়াৰ বিশ্বব্যাপী সাৰ্বজনীনতা সম্ভৱ হৈ পৰিছে। যোগ হৈছে প্ৰাকৃতিক অনুশীলন,
যোগাভ্যাসৰ জৰিয়তে অনৰ্থক চিন্তা, উদ্বেগ, ভয়, খং, কামনা, বাসনা ইত্যাদি নিয়ন্ত্ৰণ কৰাটো সম্ভৱ। আজি এই যোগ দিৱসত শিৱসাগৰৰ বহুতো বিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে অংশগ্ৰহণ কৰিছে। মই ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক আহ্বান জনাম যে সৰুৰ পৰাই যোগৰ নিয়মিত অভ্যাসে মেধা আৰু প্ৰজ্ঞাৰ বৃদ্ধি কৰে, মানুহৰ মনটোক সুস্থিৰ কৰে আৰু জীৱনৰ বাটত আগুৱাই যাবলৈ প্ৰচণ্ড শক্তি প্ৰদান কৰে। সেইবাবে আমাৰ মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক যোগাভ্যাসৰ অভ্যাস বিদ্যালয়ৰ মাজতে গঢ়ি তোলাৰ বাবে, শিশুৰ মাজতে শিশু সময়তে গঢ়ি তোলাৰ বাবে মই আহ্বান জনাম। ओम शांति शांति शांति। धीरे से आंखें खोलें, हाथों को वापस अपनी जगह ले आइए। अब चालन क्रियाओं के अभ्यास के लिए अपने स्थान पर खड़े हो जाइए। सभी लोग अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाइए। बहुत देर से बैठे हुए हम लोग। चालन क्रियाओं के अभ्यास शरीर को लचीला बनाता है। सबसे पहले गर्दन की क्रियाओं के अभ्यास से हम अभ्यास प्रारंभ करेंगे। आगे और पीछे गर्दन झुकाने का अभ्यास से प्रारंभ करेंगे। पैरों में 2 इंच का अंतर रखिए। आपके सामने योग शिक्षक अभ्यास करेंगे, उनको देखते देखते एलईडी स्क्रीन पर देखते देखते अभ्यास करना है। हाथों को कमर पर रखिए। श्वास छोड़ते हुए सिर को धीरे से आगे झुकाए। श्वास भरते हुए सिर को सामान्य स्थिति में ले आइए। अब श्वास छोड़ते हुए सिर को पीछे ले जाइए। श्वास भरते हुए सिर को सामान्य स्थिति में ले आइए। एक बार पुनः श्वास छोड़े, सिर को धीरे से आगे झुकाए। श्वास भरते हुए सिर को सामान्य स्थिति में ले आइए। पुनः श्वास छोड़े, सिर को पीछे ले जाइए। श्वास भरते हुए सिर को सामान्य स्थिति में ले आइए। अब हम दाई तथा बाई ओर गर्दन झुकाने का अभ्यास करेंगे। श्वास छोड़ते हुए सिर को दाई तरफ झुकाए, लेफ्ट साइड। श्वास भरते हुए सिर को वापस ले आए। श्वास छोड़ते हुए सिर को बाई तरफ झुकाए, लेफ्ट साइड, लेफ्ट साइड। श्वास भरते हुए सिर को वापस ले आए। पुनः एक बार श्वास छोड़ते हुए सिर को दाई तरफ झुकाए, राइट साइड। श्वास भरते हुए सिर को वापस ले आए। श्वास छोड़े, सिर को बाई तरफ झुकाए। श्वास भरे, सिर को सामान्य स्थिति में वापस ले आए। दाई और बाई ओर गर्दन मोड़ने का अभ्यास करेंगे। श्वास छोड़ते हुए सिर को दाई तरफ ले जाइए, ट्विस्ट, वेरी गुड। श्वास भरते हुए वापस आइए। अब श्वास छोड़ते हुए सिर को बाई तरफ ले जाइए, लेफ्ट साइड। श्वास भरे, वापस आइए। एक बार पुनः श्वास छोड़ते हुए सिर को दाई तरफ ले जाइए। श्वास भरते हुए वापस आइए। अब श्वास छोड़ते हुए सिर को बाई तरफ ले जाइए। श्वास भरते हुए सिर को सामान्य स्थिति में वापस ले आए। गर्दन घुमाने का अभ्यास करेंगे। नेक रोटेशन क्लॉकवाइज। श्वास छोड़ते हुए सिर को आगे की ओर झुकाए, कंठकूप में। श्वास भरे, सिर को घड़ी की सूजी की दिशा में घुमाएं। श्वास छोड़ते हुए सिर को आगे ले आइए। एक बार पुनः इस अभ्यास को दोहराइए। अब श्वास भरते हुए सिर को घड़ी की सूजी की ऊपरी दिशा में पीछे ले जाइए, एंटी क्लॉकवाइज।
श्वास छोड़े, सिर को आगे ले जाए। एक बार पुनः इस अभ्यास को दोहराइए। श्वास लेते हुए, श्वास छोड़ते हुए, श्वास प्रश्वास के साथ क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज नेक रोटेट। अब श्वास लेते हुए सिर को सामान्य स्थिति में ले आइए, हाथों को पुनः अपनी जगह ले आइए, विश्राम करें। अगला अभ्यास, सीधा खड़े हो जाए। अगला अभ्यास कटी चालन क्रिया। अपने पैरों में कंधों के बराबरी की दूरी रखें। हाथों को कंधों की सीध में सामने की ओर उठाएं। श्वास छोड़ते हुए शरीर को दाईं तरफ घुमाएं, राइट साइड। श्वास छोड़ते हुए शरीर को दाईं तरफ घुमाएं। श्वास भरते हुए अपने शरीर को सीधा कीजिए। श्वास छोड़ते हुए शरीर को बाईं तरफ घुमाएं, लेफ्ट ट्विस्टिंग, ट्विस्ट करें। फ्रंट पूरा ट्विस्ट होना चाहिए। श्वास भरते हुए अपने शरीर को सीधा कीजिए। पुनः एक बार करेंगे। श्वास छोड़े, शरीर को दाईं तरफ घुमाएं, राइट ट्विस्टिंग, ट्विस्ट करना है पूरे, बैक साइड देखना है आपको, पीछे कितने लोग हैं समझ में आएगा। श्वास भरते हुए अपने शरीर को सीधा वापस ले आए। श्वास छोड़े, शरीर को दोबारा बाईं तरफ घुमाएं, ट्विस्ट करें, बहुत बढ़िया। श्वास भरते हुए मध्यम भाग में वापस आइए और हाथों को भी वापस ले आइए, सीधा खड़े हो जाए। घुटनों की चालन क्रियाओं का अभ्यास करेंगे। श्वास भरते हुए अपने हाथों को कंधे की स्तर तक सामने ले आए, कंधे की स्तर तक, बहुत बढ़िया। श्वास छोड़ते हुए अपने घुटनों को मोड़े और बैठने की स्थिति में, स्क्वाटिंग पोजीशन में थोड़ी देर। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। श्वास भरते हुए वापस आए। हमारा स्कूल डेज का याद आ रहे हैं। दोबारा श्वास छोड़ते हुए थोड़ा सा बैठ जाइए। एक क्षण के लिए आंखें बंद करें। हम कुछ ही क्रियाओं को किया है, उसे शरीर, श्वास और मन पर असर क्या हुआ है, यही योग है। शरीर और मन को जोड़ना ही योग, उसी से योग प्रारंभ होता है। हम अब योगासनों का अभ्यास करेंगे। पहला अभ्यास ताड़ासन। जिनको घुटनों में दर्द हो वो वीडियो ना उठाए। पैरों के बीच 2 इंच की दूरी बनाएं। श्वास भरते हुए हाथों को सामने से कंधे की स्तर पर ले आए। श्वास छोड़ते हुए उंगलियों को आपस में फंसाए, हथेलियों को उल्टा कीजिए। श्वास भरते हुए हाथों को ऊपर ले जाए, पूरा ले आइए, विश्राम करें। ताड़ासन, पूरा शरीर एक बार ऊपर तक स्ट्रेच हो गया। अब हम वृक्षासन का अभ्यास करेंगे। श्वास छोड़ते हुए दाहिने पैर को मोड़िए। दाहिने तलवे को बाएं पैर की जंघा पर रखने का प्रयास कीजिए। जिन लोगों को प्रयास होता है कि पैर नीचे ही करके करें। श्वास भरते हुए अपने हाथों को ऊपर उठाए और हथेलियों को मिलाए नमस्कार मुद्रा में। सामान्य श्वास प्रश्वास के साथ बने रहे। वेरी गुड। जिनको नहीं होता है पैर उठाने का जरूरत नहीं है, पैर नीचे करके स्ट्रेच कर लीजिए बॉडी। सामान्य श्वास के साथ रहे और श्वास छोड़ते हुए हाथों को और पैरों को नीचे ले आए। बहुत बढ़िया, एक्सीलेंट। अब हम इसी अभ्यास को बाएं पैर को मोड़ते हुए दाहिने पैर की जंघा पर रखिए। श्वास भरते हुए अपने हाथों को ऊपर उठाए और अपनी हथेलियों को मिलाए। वेरी गुड। कुछ देर सामान्य स्थिति, बहुत बढ़िया। यहाँ से देखने को बहुत अच्छा लग रहा है। श्वास छोड़े, हथेलियों को वापस ले आइए, पैरों को भी नीचे लाइए, सीधा बैठिए। श्वास भरते हुए हाथों को सामने से ऊपर ले जाइए, पूरा स्ट्रेच करें, पूरा स्ट्रेच करें। श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे आगे झुकिए, कमर को खींचने के प्रयास कीजिए। जिन लोगों का कमर दर्द है वो ना करें। अपनी हथेलियों को पैरों के पंजों के पास रखें। सामान्य श्वास प्रश्वास के साथ आसन में बने रहने का प्रयास कीजिए। शिव सागर से योग अभ्यास पूरा दुनिया देख रहे हैं। अब हम श्वास भरते हुए धीरे धीरे वापस आइए। पूरा हथेलियों को ऊपर उठाए। श्वास छोड़ते हुए दोनों हाथों को नीचे ले आइए, विश्राम कीजिए।
हर एक आसन के बाद कुछ पल तक विश्राम करना, श्वास प्रश्वास पर काबू करना, मन को प्रशमन करना। अगला अभ्यास अर्धचक्रासन। अपने हाथों को कमर के पीछे रखिए, अपने दोनों कोहनियों को समान अंतर पर रखिए। श्वास भरते हुए सिर और कमर को पीछे ले जाइए, आंखें खोल कर रखना है। जिनको बीपी है ज़्यादा नहीं झुकना है। श्वास छोड़े, सामान्य श्वास प्रश्वास के साथ बने रहिए। अब श्वास भरते हुए सिर को वापस ले आइए। श्वास छोड़ते हुए अपने हाथों को पहले जैसे स्थिति में ले आइए और विश्राम कीजिए। अब हम बैठकर किए जाने वाले आसनों का अभ्यास करेंगे। धीरे से सुखपूर्वक बैठ जाइए अपने अपने स्थल पर। पैरों को सामने की तरफ सीधा कर लीजिए। हाथों को नितंब के पास रखिए, कमर सीधा कर लीजिए। इस आसन को भी हम दंडासन कहते हैं। इसी आसन के साथ हम आगे बढ़ेंगे। भद्रासन। पैरों को मोड़ते हुए दोनों तलवे को मिलाइए, दोनों तलवों को मिलाइए। श्वास छोड़ते हुए पंजों को पकड़ लीजिए। अपनी एड़ियों को शरीर की तरफ ले जाइए। सीधा बैठने का प्रयास कीजिए। पूरा स्ट्रेच करें, तलवे को पीछे खींचिए। सीधा बैठने का, कमर को सीधा कीजिए। भद्रासन घुटनों और नितंबों को, जोड़े को स्वस्थ रखने में बहुत सहायक है और महिलाओं के लिए ये बहुत लाभदायक आसन है। धीरे से वापस दंडासन में वापस आ जाइए। प्लीज कम बैक टू दंडासन। विश्राम कीजिए। अगला अभ्यास वज्रासन का अभ्यास करेंगे। पैरों को मोड़ते हुए एड़ियों के बीच बैठ जाइए। दोनों पैरों के अंगूठे मिले हो। हाथों को घुटनों पर रखिए। कमर और गर्दन को सीधा रखिए। सामान्य श्वास प्रश्वास के साथ इस आसन में बने रहें। ध्यान के लिए, प्रार्थना के लिए भारतीय परंपरा में अनेक आसनों का अभ्यास करते हैं। पद्मासन, सुखासन, वज्रासन, सिद्धासन। वज्रासन एक ध्यानात्मक आसन है। हम इसी आसन से उष्ट्रासन का अभ्यास करेंगे। अपने घुटनों पर खड़े हो जाए। हाथों को कमर पर रखिए। अर्ध उष्ट्रासन ही करेंगे। श्वास लेते हुए सिर और कमर को पीछे की तरफ झुकाए। सामान्य श्वास के साथ इसी स्थिति में बने रहिए। श्वास प्रश्वास के साथ आंखें खोलें। अर्ध उष्ट्रासन या उष्ट्रासन कमर दर्द को ठीक करने में बहुत सहायक है। श्वास भरे, पुनः वज्रासन की स्थिति में वापस आ जाइए। थोड़ी देर के लिए विश्राम कीजिए। अब हम समय का अभाव है, कुछ आसनों को कम करते हुए आगे बढ़ेंगे। शशकासन का अभ्यास करेंगे। दोनों घुटनों के करें। श्वास लीजिए, हथेलियों को घुटनों के बीच रखिए। श्वास छोड़ते हुए बिना नितंबों को उठाए शरीर को आगे ले जाइए। स्ट्रेच करें। हथेलियों को भी स्ट्रेच करना है, हथेलियों को भी आगे करना है। यस, पूरा स्ट्रेच कीजिए। बहुत बढ़िया। जो तनाव मुक्ति के लिए अभ्यास करते हैं, शशकासन बहुत लाभदायक है। छाती और ठोड़ी जमीन से लगाए। सामान्य श्वास प्रश्वास के साथ आसन में बने रहिए। ये आसन तनाव और घबराहट को कम करता है। श्वास भरे, वज्रासन में वापस आइए। थोड़ी देर के लिए विश्राम करें। अगला अभ्यास उत्थान मंडूकासन। दोबारा दोनों घुटनों को फैला लीजिए और एक बार श्वास लेते हुए अपने हाथों को ऊपर उठाए। सिर के पीछे से दोनों हाथों को मोड़िए। हथेलियों को विपरीत कंधे पर, कंधों पर रखिए। पीठ एवं गर्दन को सीधा रखिए। सामान्य श्वास प्रश्वास के साथ आसन में बने रहिए। लंबा गहरा श्वास प्रश्वास, आंखें बंद करें। ये आसन पीठ एवं गर्दन दर्द की तकलीफों को छुटकारा दिलाता है।
श्वास भरते हुए अपने दोनों हाथों को सीधा कीजिए। श्वास छोड़ते हुए दोनों हाथों को घुटनों पर ले आइए, घुटनों को भी मिलाइए और वापस दंडासन में वापस आ जाए। दोनों पैरों को सामने की ओर खींचे, सीधा बैठ जाए। बैठकर आखिरी आसन करेंगे, वक्रासन, ट्विस्टिंग आसन है। दोनों पैरों को सामने की ओर सीधा करके दंडासन में बैठ गए। अब धीरे से दाएं पैर को मोड़ते हुए पंजे को बाएं घुटने के पास रखिए। अब दाएं हाथ को पीछे रखिए, अपने बाएं हाथ को दाएं घुटने के ऊपर से घुमाते हुए दाएं पंजे के पास रखिए। वेरी गुड। श्वास छोड़ते हुए सिर और शरीर को दाईं तरफ मोड़िए, ट्विस्ट कीजिए, पूरा ट्विस्ट कीजिए। मधुमेह के लिए और अनेक बीमारियों के लिए रामबाण है। श्वास भरते हुए वापस आइए। अब ये आसन को सीधा बैठ जाए। इसी आसन को बाईं तरफ से भी करेंगे। धीरे से बाईं पैर को मोड़िए, बाएं पैर के पंजे को दाहिने घुटने के पास रखिए। अब बाएं हाथ को पीछे रखिए, अपने दाहिने हाथ को बाएं घुटने के ऊपर से घुमाते हुए बाएं पंजों के पास रखिए। श्वास छोड़े, सिर और शरीर को बाईं तरफ मोड़िए, ट्विस्ट टुवर्ड्स द लेफ्ट साइड ट्विस्ट कर। बहुत बढ़िया। यहाँ से देखने में बहुत आनंद आ रहा है। कुछ देर सामान्य श्वास प्रश्वास के साथ रहिए। ये आसन मधुमेह को नियंत्रण करने में बहुत लाभदायक माना जाता है। श्वास भरते हुए वापस आइए, पैर सीधा कीजिए। सामान्य श्वास प्रश्वास के साथ कुछ देर विश्राम कीजिए। अगला क्रम में पेट के बल लेटकर किए जाने वाले आसनों का अभ्यास करेंगे। पेट के बल लेट जाइए, सिर मंदिर के तरफ, हमारे तरफ, पेट के तरफ। बहुत लोग हम साष्टांग नमस्कार करते हैं जब मंदिर में जाते हैं। आज 6000 से ज़्यादा लोग एक होकर भगवान शिव जी को हम साष्टांग नमन कर रहे हैं इसी दौरान। अब हम मकरासन से प्रारंभ करेंगे। अपने दोनों पैरों के बीच कुछ इंच की दूरी बनाएं। दोनों कोहनियों को मोड़ते हुए दाई हथेली को बाई हथेली पर रखिए। अब अपने सिर को हथेली पर रखें। थोड़ी देर के लिए विश्राम कीजिए। मकरासन। मकरासन शरीर और मन को विश्राम प्रदान करता है। थोड़ी देर विश्राम कीजिए। अगला आसन सरल आसन है लेकिन बहुत अच्छा आसन श्वास रक्षण में, भुजंगासन। दोनों पैरों को मिलाइए। श्वास भरते हुए अपने दोनों हाथों को आगे की ओर सीधा कीजिए। श्वास छोड़ते हुए अपने हाथों को मोड़िए और अपनी हथेलियों को सीने के पास रखिए। श्वास भरे, अपनी ठोड़ी और छाती को नाभि वाले भाग तक ही उठाएं। दोनों हाथों को बगल में रखिए सर। हाँ, यस, थोड़ी सी ऊपर। सब लोगों का शिव जी को यहाँ नमन करना है, सिर उठाकर। अब सिर झुकाकर किए थे, हम सिर उठाकर नमन करेंगे, भुजंगासन। श्वामन श्वास प्रश्वास के साथ आसन में बने रहिए। पेट की चर्बी को घटाते हैं कब्ज से राहत मिलती है। अब श्वास छोटे हुए वापस आइए। मकरासन। बहुत बढ़िया। विश्राम, आराम से दोनों हथेली अपने ऊपर रखें। थोड़ी देर के लिए विश्राम। अब हम शलभासन का अभ्यास करेंगे। अपने पैरों को मिलाइए, अपने हाथों को जंघाओं के पास रखिए। दोनों हथेलियां जमीन की तरफ रखिए। ठोड़ी को जमीन से लगाइए। श्वास भरते हुए घुटनों से बिना मोड़े अपने दोनों पैरों को उठाएं। लिफ्ट बोथ द लेग्स विदाउट बेंडिंग द नीज। बढ़िया। सामान्य श्वास प्रश्वास के साथ बने रहे। बहुत बढ़िया। श्वास छोड़ते हुए वापस आइए। पैरों को नीचे रखिए। मकरासन में विश्राम कीजिए। हमने इतना अच्छे आसन यहाँ चुने हैं, उसे पूरा शारीरिक और मानसिक संतुलन बरकरार है। पीठ के बल लेकर किए जाने वाले आसनों का अभ्यास की ओर बढ़ेंगे। अब आइए, दाईं तरफ करवट ले, पीठ के बल लेट जाइए।
Please lie down on your back. पहली बार इस पवित्र प्रांगण में 6000 से ज़्यादा योग अभ्यासी एक स्तर पर अनेक योगिक क्रियाओं को कर रहे हैं। अपने आप में एक बड़ा संदेश इस प्रांगण से हम दुनिया को दे रहे हैं भगवान शिव जी के सामने। अब हम सेतु बंधासन का अभ्यास करेंगे। जिन्हें गर्दन में दर्द हो वे इस अभ्यास को सावधानी पूर्वक करें। दोनों घुटनों को मोड़ते हुए अपनी एड़ियों को नितंब के प्रति नजदीक ले आए। अपने थकनों को पकड़ लीजिए। सामान्य श्वास प्रश्वास के साथ आसन में बने रहे। सिर्फ हम 3 श्वास प्रश्वास तक ही आपको रोकने का प्रयास कर रहे हैं। वापस आइए, श्वास छोड़े, पीठ के बल विश्राम। अगले क्रम में पवन मुक्तासन का अभ्यास करेंगे। अपने पैरों को मिलाइए, घुटनों को मोड़ते हुए अपनी जंघाओं को सीने के पास लिया जाए। आराम से कीजिए, आराम से, गड़बड़ नहीं करना है। दोनों हाथों की उंगलियों को आपस में फंसाते हुए टांगों को पकड़ लीजिए। जो पकड़ नहीं पाते सिर्फ आपको पैरों को पकड़िए। दाएं पैर दाएं हाथ से, बाएं पैर बाएं हाथ से पकड़िए। श्वास छोड़ते हुए सिर को ऊपर उठाए। हो सके तो अपनी ठोड़ी या नासिका को घुटने के बीच लगाने के प्रयास कीजिए। सामान्य श्वास प्रश्वास के साथ आसन में बने रहें। सभी लोग इस अभ्यास को बहुत आसानी के साथ कर रहे हैं। मुझे सौभाग्य है ये पवित्र प्रांगण से आपका योग अभ्यास देखने का। श्वास छोड़ते हुए सिर और पैरों को वापस ले आइए, विश्राम कीजिए। पिछले आधा घंटे से हम कुछ योगाभ्यास कर रहे हैं, थोड़ा सा विश्राम करेंगे। सबके इंतजार है शवासन का। पैरों और हाथ और एक बार गहरा लंबा श्वास लीजिए। डीप इनहेलेशन, कंप्लीट एक्सहेलेशन। 3 बार या 5 बार पूर्ण श्वास प्रश्वास। इससे शरीर में ऊर्जा, शरीर में विश्राम का भाव। अब शरीर के प्रत्येक अंग के प्रति सजगता का भाव रखिए। पैरों से लेकर घुटनों, कमर, पीठ, पेट, छाती, गर्दन, सिर, दोनों हथेलियां जमीन पर हो। अब अपना विचार, शरीर ढीला विश्राम कर रहे, मन को भी शांत करना है। तरीका है कि मन हमेशा चंचल है। एक के बाद विचार सिर्फ देखते रहिए। आप दृष्टा बने। हर एक विचार के साथ भावनाएं प्रसन्नता आने तक प्रक्रिया जारी रखें। शवासन का नियमित अभ्यास से हम चिंता और तनाव से मुक्ति पा सकते हैं। पूरा प्रांगण हजारों संख्याओं में योग अभ्यासी से भरे हुए, लेकिन प्रसन्न शांतता, यही विश्व शांति का संदेश इस प्रांगण से हम दे रहे हैं। धीरे से बाइया दाई ओर कर और 2-4 मिनट मैं ऐसे ही छोड़ दिया तो सब लोग
खाने में कष्ट हो जाता है। आगे क्रम में कपालभाति का अभ्यास करेंगे। अब हम कपालभाति का अभ्यास करेंगे। सीधा बैठ ऊर्जा के साथ किसी भी ध्यानात्मक आसन में बैठ जाइए। सुखासन, पद्मासन, वज्रासन, कोई भी। आंखें बंद कीजिए, कमर और गर्दन को सीधा रखिए, हाथों को ज्ञान मुद्रा बनाएं और घुटनों पर रखिए। गहरा लंबा श्वास लेना है और उदर की मांसपेशियों पर दबाव डालते हुए श्वास छोड़ना है। 30 चक्र करेंगे लाइक दिस। ओके, मेरे साथ करेंगे 30 चक्र का पहला अभ्यास। कपाल पर चालू करें। श्वास छोड़ें, आंखें बंद करें, गहरा लंबा श्वास कीजिए, छोड़िए, थोड़ी देर के लिए विश्राम करें। दोबारा कमर सीधा रखें, छाती ऊपर, दूसरा चक्र 30 सेकंड का। स्टार्ट। श्वास छोड़िए, विश्राम करें। कपालभाति का प्रभाव मस्तिष्क पर, पेट पर, छाती पर। अब तीसरा और अंतिम चक्र का शुरुआत करेंगे। दोबारा कमर सीधा करें, छाती ऊपर, 30 सेकंड। स्टार्ट। श्वास छोड़े, विश्राम। कपालभाति श्वसन अंगों के कार्य को सुधारने में बहुत सहायक है। कफ विकारों से मुक्ति पाने के लिए सरल और सुलभ योगिक अभ्यास। अब हम आगे बढ़ते हुए अनुलोम विलोम प्राणायाम का अभ्यास करेंगे। कमर एवं गर्दन को सीधा रखते हुए आंखें बंद करें। बाई हथेली से ज्ञान मुद्रा बनाएं। दाई हथेली से नासाग्र या प्राणायाम मुद्रा। जिस ढंग से दाहिने नासिका रंध्र को बंद करते हुए बाएं से सांस लीजिए। बाएं नाक रंध्र को बंद करें, दाएं से श्वास छोड़िए, पूरा श्वास छोड़िए। अब दाहिने नासिका रंध्र से श्वास लीजिए, बाएं से श्वास छोड़िए। एक चक्र हुआ, 4 और चक्र करें। बाएं से सांस लीजिए धीरे से, दाहिने से छोड़िए, दाहिने से लेना है, बाएं से छोड़ना है। कंटिन्यू करें। गहरा लंबा श्वास प्रश्वास, एकदम मस्त, एकदम बढ़िया, एक्सलेंट। श्वास प्रश्वास अल्टरनेटिव नॉस्ट्रल ब्रीदिंग से हमारा सिंपैथेटिक पैरासिम्पैथेटिक जो नेटवर्क है उसमें समतोलन प्राप्त कर सकते हैं। अनुलोम विलोम प्राणायाम अभ्यास नियमित ढंग से करने से इम्यूनिटी या रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ता है, एकाग्रता बढ़ाने में मदद करता है। और बाई नासिका रंध्र से श्वास छोड़े, वापस आ जाए। अब हम शीतली प्राणायाम का अभ्यास करेंगे। अपने हथेलियों को ज्ञान मुद्रा में रखें, घुटनों पर, जीभ को बाहर निकालिए और मोड़ते हुए ट्यूब नामा आकार बनाएं। ट्यूब नामा आकार बनाएं।
जीभ से गहरा लंबा श्वास लीजिए, नासिका से श्वास छोड़ेंगे। 4-5 बार करेंगे। जीभ से ना श्वास लेना है, नासिका से श्वास छोड़ना है। एक बार और जीभ से श्वास लीजिए, नासिका से श्वास छोड़िए। आखिरी बार जीभ से श्वास लीजिए, नासिका से श्वास छोड़िए। विश्राम कीजिए। शीतली प्राणायाम पित्त विकार को कम करने में सहायक है। अब हम ब्राह्मणी प्राणायाम का अभ्यास करेंगे। आंखों को बंद रखते हुए हथेलियों से ज्ञान मुद्रा बनाएं। गहरा लंबा श्वास लेना है। श्वास छोड़ते हुए भ्रमर के समान मकार ध्वनि का गुंजन करना है। श्वास लीजिए। आसमान तक ध्वनि पहुंचना चाहिए। एक बार फिर सांस लीजिए। यही अभ्यास षण्मुखी मुद्रा के साथ करेंगे। षण्मुखी मुद्रा बनाएं, ऐसे सामने देखिए। यस, सांस लेना है। आंखों को बंद रखिए। मेरुदंड को सीधा रखते हुए ज्ञान मुद्रा धारण कीजिए। कंधों को शिथिल कीजिए। अपने श्वास प्रश्वास पर ध्यान केंद्रित कीजिए। एक ही बात आप सब लोग याद रखें, हम भगवान के सामने बैठे हुए। इससे अच्छा स्थल ध्यान के लिए कहीं नहीं मिलेंगे, कभी नहीं मिलेंगे। हम भाग्यशाली हैं, भगवान के मंदिर के सामने अवसर मिला है ध्यान अभ्यास करने के। जैसे शरीर शिथिल हो जाता है, मन श्वास प्रश्वास के प्रति सजग रहना। प्रसन्न मन से संकल्प करेंगे। मन ही मन संकल्प धारण करेंगे। हमें अपने मन को हमेशा संतुलित रखना है। इसी में हमारा आत्मविकास समाया है। मैं स्वयं के प्रति, कुटुंब के प्रति, कार्य, समाज और विश्व के प्रति शांति, आनंद और स्वास्थ्य के प्रचार के लिए संकल्पबद्ध हूँ। मैं मानव मूल्यों का पालन करने के लिए प्रतिबद्ध हूँ। देश के विकास के लिए समर्पित हूँ, समर्पित हूँ, समर्पित हूँ। इसी संकल्प के साथ शांति पाठ के लिए नमस्कार मुद्रा धारण करें और एक बार कमर सीधा करें, आंखें बंद करें। बहुत प्रेम और भक्ति के साथ हम शांति पाठ करेंगे। विश्व शांति के कामना करेंगे इस पवित्र प्रांगण से। सांस लीजिए। सर्वे भवन्तु सुखिनः
सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत् मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत् मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत् ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। अब हम हथेलियों को आंखों पर रखें, अपने आंखें खोली, हाथों को वापस ले आई, अपना लुकार दिन तो मंगलमय हो। आपका सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो। जो गण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता पंजाब सिंधु गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्छल जलधि तरंगा तव शुभ नामे गाये तव शुभ आशीष माये गाहे नव जय गाथा जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। নমস্কাৰ জনাইছোঁ সকলোকে। আমি উপস্থিত আছোঁ আজি শিৱসাগৰৰ শিৱদৌল প্ৰাংগণত আৰু মোৰ কাষত উপস্থিত আছে আমাৰ শ্ৰদ্ধাৰ শিৱসাগৰ জিলাৰ বিদ্যালয়সমূহৰ পৰিদৰ্শক মহোদয় আৰু মই ছাৰক ধন্যবাদ জনাম যিহেতু আপোনাৰ মই নিৰ্দেশনা মতে ছাৰ ইয়াত আহি উপস্থিত হ'লোহি আৰু আজি যি য়োগাৰ যি মানে অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হ'ল তাৰ বিষয়ে আমাক জনাওক। আপোনালোকে দেখিছে আজি শিৱদৌলৰ প্ৰাংগণত শিৱসাগৰৰ সকলোফালে আমাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে যোগ কৰিছে। ইণ্টাৰনেশ্যনেল যোগোদয় উপলক্ষে 7খন আইকনিক চিটিত ভাৰতবৰ্ষ অনুষ্ঠিত কৰাৰ ভিতৰত উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ নহয় পূৰ্বাঞ্চলৰ শিৱসাগৰৰ আমাৰ এই জিলাখন নিৰ্বাচন কৰি ল'লে। ঐতিহাসিক আইকনিক এই টাউন শিৱসাগৰত আজি যোগ অনুষ্ঠিত হৈছে। মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়, আয়ুষ মন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱাল ডাঙৰীয়া আদি কৰি উত্তৰ পূবৰ বহুকেইজন আমাৰ স্বাস্থ্যমন্ত্ৰী আৰু মুখ্যমন্ত্ৰী আজি যোগ কৰিছে। আমাৰ যোগ ইতিমধ্যে শেষ হৈছে আৰু ইয়াত আমি 10,000তকৈ অধিক আজি পাৰ্টিচিপেণ্ট পাইছোঁ যোগৰ আৰু যোগাভ্যাস প্ৰায় এঘণ্টা ধৰি অনুষ্ঠিত হৈ গ'ল। আজি আমি সফলতাৰে এই যোগ দিৱস 50 দিন কাউণ্টডাউন কৰি 50 দিনত ভৰি দিছে হৈছে বুলি আমি অনুভৱ কৰিছোঁ। ইয়াৰ পিছতে আমাৰ এতিয়া খাদ্য বিতৰণ কৰিব। সকলোৱে খাদ্য বিতৰণ কৰাৰ পিছত আমি আকৌ অহা 21 জুনত অনুষ্ঠিত হ'বলগীয়া ইণ্টাৰনেশ্যনেল যোগ দিৱসৰ বাবে শিৱসাগৰ জিলাই আমি সাজু হ'ম। গতিকে আমাৰ প্ৰায় 10,000তকৈ অধিক আমি ধৰিছিলোঁ 7,500 কিন্তু 10,000 হৈ গৈছে কাৰণ 75 বছৰ স্বাধীনতাৰ অমৃত মহোৎসৱৰ উপলক্ষে এই আয়োজন কৰা হৈছে। গতিকে আজি শিৱসাগৰৰ শিৱদৌল প্ৰাংগণ আৰু 6টা ভেনু, এটা ৰংঘৰ, কাৰেংঘৰ, তলাতল ঘৰ আৰু জয়সাগৰ জয়দৌল আৰু গৌৰীসাগৰৰ দেৱীদৌল আৰু ৰুদ্ৰসাগৰৰ শিৱদৌলত অনুষ্ঠিত হৈছে। গতিকে আমি সেইফালৰ পৰা কাউণ্ট কৰিলে প্ৰায় 15,000তকৈ অধিক আজি যোগ আমাৰ পাৰ্টিচিপেণ্ট ইয়াত পাইছোঁ। এইটোৰ বাবে আমাৰ এটা ঐতিহাসিক দিন। আমাৰ
শিক্ষা বিভাগৰ পৰা আজি যি পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰি বিদ্যালয়সমূহৰ পৰা ছাত্ৰ ছাত্ৰী অনা হ'ল তাৰ কাৰণে আপোনাক ছাৰ অশেষ ধন্যবাদ জনাইছোঁ আৰু সকলো কুশলে থাকক এইবাৰ যি অভ্যাস সেই অভ্যাস দিছোঁ ধন্যবাদ।